ہمارا جب جہاں دل ہوتا ہے ہم قابض ہو جاتے ہیں، ہم اپنے فضول لفظوں کے ساتھ لوگوں کی سوچ پر قابض ہو جاتے ہیں، جہاں جس کا جو بس چلتا ہے، جہاں ہم پنجابی میں کہہ سکتے ہیں جہاں جس کا جو دا لگتا ہے وہ وہاں پہ قابض ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور ہمیں شاید لگتا ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارے سے ذرا کمزور ہے، اس کے اتنے لنکس نہیں ہیں، تو اس کی زمین پر بھی قابض ہوا جا سکتا ہے۔ وہ چیزیں، وہ زمینیں، وہ گھر جہاں پہ پتہ نہیں لوگوں نے اتنی محنت و مشقت کے ساتھ کتنے سالوں کی ریاضت کے بعد وہ گھر بناتے ہیں، اور کیسے کوئی اپنا انفلوئنس استعمال کرتے ہوئے اس پر قابض ہو جاتا ہے، اس بارے میں جانتے ہیں کیا قانون ہے، کس طرح سے کوئی میں نے دیکھا ہے اکثر جتنے بھی گھر موجود ہیں وہاں پہ لکھ کر، بچپن سے میں اپنے گلی محلے میں دیکھتی میں آئی ہوں، یہ پلاٹ جو ہے متنازع ہے، یا پھر یہ پلاٹ جو ہے قبضہ ہے، یا سم تھنگ کچھ اس طرح سے، اور مجھے لگتا ہے وہ حل ہی نہیں ہوتے ہیں۔ ایک بار کوئی قابض ہو جائے تو شاید نصیب والا ہی ہو جس کو چھڑوا سکتا ہو یا اپنا بہترین طریقے سے انفلوئنس لگا سکتا ہو، یا تو دشمن داریاں ہو جاتی ہیں یا وہاں کے قتل کروا دیے جاتے ہیں، یہی سب چیزیں سننے میں آتی ہیں۔ اس کا اصل میں کیا حل ہے یہ ہم جانیں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے زاہد جاوید بٹ صاحب نے۔ سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں آنے کے لیے۔ سر آپ نے بھی اکثر ایسے پلاٹس، ایسے گھر، ایسی سب چیزیں دیکھی ہوں گی کہ یہ قبضہ ہو چکا ہے، آپ کی نظر سے گزرتی ہوں گی کہ یہ بیچا نہیں جا سکتا یا خریدا نہیں جا سکتا، تو یہ کیا معاملات حل ہوتے ہیں یا یہ صرف ایسے ہی چلتے رہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، دنیا میں ہر چیز کا حل موجود ہے، قانون موجود ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا پیدا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے سرٹن قوانین بنا دیے انسان کے اٹھنے بیٹھنے کے لیے، چلنے پھرنے کے لیے، اس کی زندگی گزارنے کے لیے۔ تو اس کے بعد جب کوئی ملک ہوتا ہے یا کوئی ریاست ہوتی ہے، اس ریاست اس ملک کے قوانین ہوتے ہیں جس میں سب سے زیادہ خیال رکھا جاتا ہے عوام کا، لوگوں کی فلاح و بہبود کا، ان کے بود و باش کا، ان کے مطلب رہائش وغیرہ کا۔ تو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ آج کل اور اس سے پہلے بھی جو کمزور ترین لوگ ہوتے ہیں یا جو اپنا حفاظت نہیں کر سکتے اپنی چیزوں کی، ان پہ لوگ ناجائز قابض ہو جاتے ہیں یا جسے سنبھال نہیں سکتے۔ جیسے وہ زمینیں ہیں، اس میں زرعی زمینیں بھی آ جاتی ہیں، اس میں شہری جائیدادیں بھی ہیں، اور اس میں زیادہ تر جو ہمارا کل ٹرینڈ بن گیا ہے سرکاری زمینوں پہ قبضہ کرنا۔ اچھا، ایسے بھی ہوتا ہے؟ جی ایسے ہی مجھے لگتا ہے کہ سرکاری زمینیں سیف ہوتی ہیں۔ نہیں، سیف نہیں ہوتی، کیونکہ حکومتیں ساتھ ملی ہوتی ہیں، اس لیے ان کے جو میں نے پہلے بتایا نا، جو آج کل ہمارے ملک میں ٹرینڈ چل رہا ہے، ٹرینڈ یہ ہے کہ سیاسی اثر و رسوخ جس کا ہوتا ہے، جس کے اوپر تعلقات ہوتے ہیں، سرکاری زمینیں جہاں پڑی ہوتی ہیں وہ ان سے مل ملا کے ان زمینوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ اب گورنمنٹ کو یہ خیال آیا ہے، اب اس میں میں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ یہ جو فٹ پاتھ ہوتے ہیں یہ پبلک کی پراپرٹی ہے، پبلک کے چلنے کے لیے بنائے گئے ہیں، ان کی سیفٹی کے لیے بنائے گئے ہیں فٹ پاتھ، سڑک اور سڑک کے بعد فٹ پاتھ۔ اب اگر فٹ پاتھ ہی جو مارکیٹوں والے ہیں، دکاندار ہیں، ان پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائیں گے، وہ چونکہ ایک سرکاری پراپرٹی ہے نا، وہ پبلک کے لیے بنائی گئی ہے کہ پبلک وہاں پہ آرام سے گزر سکے اور اپنا جا سکے۔ آپ نے سنگاپور میں، جاپان میں، چائنا میں دیکھا ہوگا، لوگ پیدل چلتے جا رہے ہیں اور لائنوں میں چلتے جا رہے ہیں اور رش ہوتا ہے اچھا خاصا، سڑک ایک طرف چل رہی ہے، لوگ چلتے جا رہے ہیں، زیادہ لوگ وہاں پیدل چلنے کو پریفر کرتے ہیں۔ دنیا میں جو فٹ پاتھ کا سسٹم ہے وہ رائج ہے، ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ فٹ پاتھ بھی لوگ نہیں چھوڑتے۔ فٹ پاتھ کے دکان آپ بنائیں گے، 20 فٹ کے اندر دکان خریدتے ہیں مارکیٹ میں، اور 40 فٹ کا یا 10 فٹ کا، 5 فٹ کا، جتنا بار فٹ پاتھ ہے، دکان آپ کی ساری باہر ہوتی ہے، اندر دکان خالی ہوتی ہے۔ تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے پنجاب گورنمنٹ نے، جو اب آئی ہے پنجاب گورنمنٹ، انہوں نے ایک ایکٹ بنایا تھا، اس سے پہلے بھی ویسے انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 میں آ چکا ہے، جو کہ اسی طرح جن لوگوں کی زمینوں پہ، مکانوں پہ کوئی انلیگل قبضہ کر لیتا ہے اس کو چھڑوانے کے لیے آپ عدالت میں آ سکتے ہیں، اور عدالت اس کو پورا ریلیف دیتی ہے، اس کی سنوائی ہوتی ہے اور ہوتی رہی ہے۔ ابھی انہوں نے بنایا ہے پیرا ایکٹ کے نام سے، جو کہ ڈسپوزیشن پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی بنائی ہے۔ اس میں انہوں نے اتھارٹی کے ساتھ ساتھ ایک فورس بھی بنائی ہے جو پولیس پہ مشتمل ہے، اور اسپیشل وہاں پہ پولیس سے ہی جوان وہاں سے لا کے ایک فورس بنے گی ہے کہ جہاں جہاں شہر میں، پورے پنجاب میں، کسی بھی شہر میں، کسی بھی جگہ پر کوئی کسی کی غلط جگہ پہ قابض ہے تو اس کو آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے۔ اور سب سے پہلے انہوں نے سٹارٹ کیا ہے بازاروں میں،
रश वाले बाज़ारों में ख़ास तौर पे जहाँ दुकानदार बाहर निकल के सारी सड़क मल के और उस पर कब्ज़ा करके उन्होंने अपनी दुकानें सजा रखी हैं, उसमें मैं समझता हूँ कि हम लोग जिनको गरीब लोग कहते हैं वो भी लोग शामिल हैं। वो जो अपनी रेहड़ियाँ फुटपाथ की बजाय सड़क पे आ जाते हैं, सड़क से भी आगे आ जाते हैं। अब लामोहल्ला सड़क पे रेहड़ियाँ लगी हुई हैं, सरकारी प्रॉपर्टी है, वो बाकायदा खोखे बना लेते हैं अपने, वहाँ पे मुस्तकिल अब विराजमान हो जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं अक्सर माल रोड से लेकर अनारकली वाली साइड से लेकर सड़कें जो इतनी चौड़ी हैं लेकिन सारी पार्किंग वालों ने ली हुई है और बाकायदा जो है उस पर पैसे दिए जाते हैं कि इतनी पार्किंग, तो उसको भी हम कब्ज़ा ही कंसीडर करेंगे? जी बिल्कुल। ये देखें ना, पाकिस्तान में मैंने आपको जैसे पहले बताया है कि एक तो फुटपाथ है और उसके बाद सड़क है। अब आपने अक्सर देखा होगा लाहौर में भी दूसरे शहरों में भी दुकानों के आगे, मार्केटों के आगे पहले फुटपाथ मलते हैं, फुटपाथ के आगे फिर जो सड़क है बाकायदा वो सारी उन्होंने कब्ज़ा करके वहाँ पे पार्किंग बना दी है। अब पार्किंग के लिए क्या होना चाहिए, जो भी प्लाज़ा बनता है उसका जो नक्शा पास होता है उसके लिए ज़रूरी है कि वो वहाँ पार्किंग का स्पेशल बंदोबस्त करे। बड़े बड़े प्लाज़ों में जो बहुत ज़्यादा बड़े प्लाजे हैं जिनके मल्टी स्टोरीज प्लाजे हैं उनके तो पार्किंग है, मगर होता क्या है आहिस्ता आहिस्ता वो लोग भी, वो जो पार्किंग वाली जगह भी होते हैं वो भी सेल आउट कर देते हैं मालकार, और गाड़ियाँ फिर बाहर सड़क पे खड़ी होती हैं। जब गाड़ियाँ सड़क पे खड़ी होती है तो वो वहाँ पे एक नाम नहाद टोकन वाला आ जाता है जो आपको 100 रुपये की पर्ची पकड़ा देता है, 50 रुपये की पर्ची पकड़ाता है। वो भी एक माफिया का हिस्सा है। लाहौर में तो बहुत सरगर्म है, दूसरे शहरों में भी सरगर्म होंगे। इस तरह उन लोगों ने कब्जे किए हुए हैं। तो आपको कहाँ लगता है कौन सी ऐसी जगह जो स्पेसिफिकली आप कहते हैं कि ये रेड जोन एरिया, यहाँ पे जाकर अगर जगह छुड़वाई जाए तो बहुत फ़ायदेमंद और सूदमंद साबित हो सकता है? अदालतें हैं। सबसे पहले तो मैंने जैसे बताया ना 2005 में इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट आ चुका है, जहाँ पे लोग काबिज होकर बैठे हैं। कौन से ऐसे बाजार हैं, कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे इलीगल इमारतें जो हैं वो तामीर हुई हुई हैं, अगर वो कब्जा जो है वो छुड़वाया जा सके तो वो फ़ायदेमंद हो सकता है और काफ़ी लोगों का ऑब्वियसली नुकसान भी। अब देखें, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। जो हुकूमतें होती है ये उनके परवरदा लोग होते हैं, हुकूमतें पीछे सपोर्ट करती हैं। अब आपने मिसाल के तौर पे कहा तो मैं बहुत वाज़ेह मिसाल आपको दे देता हूँ। लाहौर में एक जगह है हाल रोड जहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है, टेलीफोन एक्सेसरीज़ की मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है। पूरी दुनिया से लोग वहाँ पे माल भेजते भी हैं, माल ख़रीदते भी हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग वहाँ पे आते हैं। वहाँ पे वो जो ताजरान हैं, जो नाम नहाद वहाँ के, बात तो मैं बड़ी सख्त कहने वाला हूँ, वो सारे हुकूमती सरपरस्ती में हुकूमती बोर्ड लगा के बड़े बड़े उनको पैसे दे के हुकूमती अहदेदारों को वहाँ पे उन्होंने नालों के ऊपर दुकानें बना ली हैं, प्लाजे खड़े कर लिए हैं। इल्लीगल है। नाला जो एक पानी गुजरने का रास्ता है गंदे पानी का, और जब बारिशें होती हैं तो बारिशों का पानी भी सारा उन नालों में जाता है और वो गुजर के अपना रास्ता लेता है, वो दरिया में चला जाता है या जहाँ पे भी जाता है जो मेन सीवरेज है। मगर वहाँ पे नालों के ऊपर उन लोगों ने मार्केटें खड़ी करके करोड़ों अरबों रुपए की दुकानें फ़रोख्त की हैं और वो माल बना रहे हैं, हुकूमत को भी खिला रहे हैं, ख़ुद भी खा रहे हैं। और वहाँ पे आप यकीन कीजिए कि लाखों रुपए हिसाब से स्क्वायर फुट जगह मिलती है। उन्हीं दुकानदारों ने फिर अपनी दुकानों के आगे, एक तो वो माफिया है ना जो प्लाजे बना चुका है वहाँ पे और करोड़ों अरबों रुपए के बेच चुका है, उन पे गवर्नमेंट कोई तवज्जो नहीं देती। वो जो गवर्नमेंटें हैं वो गवर्नमेंटें ही उनको सपोर्ट करती हैं, ऐसे जो माफिया नासर होते हैं, और उन्होंने कब्ज़े किए हुए और उन्होंने प्लाजे बना लिए हुए। आप हाल रोड कभी आपको इत्तेफाक हो जाने का तो वहाँ पे तो इस कदर रश होता है कि वहाँ पे मतलब वॉक टू वॉक बंदा फंसा होता है, बिल्कुल चलने की जगह नहीं होती। वहाँ पे नालों पे दुकानें, सड़कों पे आगे वो जो स्टॉल्स लगे हुए हैं, जो स्टॉल्स 2 बार गई हूँ और मुझे लगता है दोबारा नहीं जा सकूँ। एक छोटा सा स्टॉल रखने का दुकानदार उनसे रोज़ाना का 5 से 10 हज़ार रुपया लेता है और वो कमा भी रहे हैं। और फिर होता क्या है, वहाँ 2 नंबरी होती है बहुत ज़्यादा, वो 2 नंबरी करते हैं। 2 नंबर लोग होंगे, 2 नंबर जगह पे बैठे होंगे, 2 नंबरी करेंगे, तो इसी तरह मुआशरा ख़राब होता है। देखिए ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इस्लाम में है, सबसे पहले तो ये है कि किसी ने किसी की बाल्स्ट भर ज़मीन, एक बाल्स्ट कहते हैं ना, एक पंजाबी में गिट कहते हैं इसको, तो एक बाल्स्ट भर ज़मीन पे भी जिसने कब्ज़ा किया वो क़यामत को उसका हिसाब देगा और उससे वो उसका हिसाब लिया जाएगा। तो हमने कब्ज़े की मद में तो हमने कब्रों पे कब्ज़े कर लिए हैं, कब्रिस्तान में लोगों के कब्ज़े हैं। एक कब्र किसी की है, आप साल एक कब्र पे ना जाएं तो उस कब्र पे कब्जा हुआ होता है। किसी ने वो जो गोरकन होते हैं वो कब्र किसी दूसरे को बेच देते हैं,
आपको शायद इस बात का इल्म है कि नहीं है, कब्र भी अब सस्ती नहीं है। 25 से 50 हज़ार, 50 से लाख रुपए तक गोरकन कब्र बेचते हैं और वो पैसे कमा रहे हैं। अब ये भी कब्जे की एक है ना चीज़। इसी तरह मैंने जैसे बताया कि आप साल कब्रिस्तान पे ना जाएं या 6 महीने कोई नहीं जाता तो उसका वाली वारस समझते कोई नहीं, आप कब्र आगे भेज देते हैं। इसी तरह जो प्रॉपर्टीज़ जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो बाहर चले जाते हैं, मेहनत मशक्क़त करके बेचारे घरों को भी बेचते हैं, कोई थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी बना लेते हैं। वो ये देखते हैं कि इस प्रॉपर्टी पे तो कोई आता नहीं है, जो माफिया है वो वहाँ पे कब्ज़ा कर लेता है, ठीक है। और कभी कोई एक शहर से दूसरे शहर अगर कोई चला गया है, उस पीछे मकान छोड़ गया है, वो खाली पड़ा हुआ है, कब्ज़ा माफिया जहाँ पे कब्ज़ा कर लेगा। और फिर मज़ेदारी की बात यह है, वही लोग जो काबज़ होते हैं, इल्लीगल काबज़ होते हैं, वो आगे अदालतों में सहारा ले लेते हैं, जिसको हम स्टे ऑर्डर कहते हैं। स्टे ऑर्डर हासिल कर लेते हैं, जाली कागजात बनवा लेते हैं और वो इसी तरह कब्ज़ा दर कब्ज़ा होता रहता है। मगर असल जो प्रॉब्लम है ना हमारे मुल्क में, हमारे शहरों में, वो है कब्ज़ा माफिया, जो लोगों की जायज़ प्रॉपर्टीज़ पे कब्ज़ा किए बैठे हैं। कुछ तो कब्ज़ा दर कब्ज़ा करते रहते हैं ना इलीगल, मगर जो जायज़ लोगों की प्रॉपर्टी होती है उन पे भी लोग कब्ज़ा कर लेते हैं जाली कागजात बनवा के। उसको छुड़वाना बड़ा मुश्किल होता है, फिर लोग अदालतों में आते हैं। वो जो मैंने बताया ना 2005 का इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट, वो इसीलिए आया था। सही हो गया। सर लास्ट पे कोई पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम इसके लिए यही है जी कि मैंने जैसे बताया कि इस्लाम में तो इसकी बड़ी सख्ती है, जिसने किसी की बाश पर ज़मीन पर भी कब्ज़ा किया उसको हिसाब देना पड़ेगा। दूसरा मैं यही कहूँगा कि कानून इस मुल्क में जितने मर्ज़ी एक्ट आ जाएं, जितने मर्ज़ी कवानीन आप बना लें, जब तक कवानीन पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी और हमें अवेयरनेस नहीं होगी, हम इस मुआशरे को, इस मुल्क को कामयाब नहीं बना सकते। इसलिए ऐसी बातों से और एतराज़ करना चाहिए और कानून पे अमल दरामद करना चाहिए। बिल्कुल इस तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में आने के लिए।